Good evening, everyone. I'm Ankita Saraugi, and I'm elated to welcome you all to this webinar on behalf of Cerebro team. I'm delighted to introduce our esteemed speaker for this webinar, CA Rishita Motwani. CA Rishita is the founder of Finance Cafe. She is an experienced educator and trainer with 5 plus years of teaching experience. She is a qualified chartered accountant and an advocate with 9 plus years industry experience. She is an active and trusted stock market trader. She has her expertise in wealth portfolio designing, stock analysis, financial decision making, and investment planning. She will be sharing her valuable acumen today with us on stock market trading. So pull out your pens and notebooks and get ready to dive into the world of finance. Now I invite Rishita ma'am to kindly take the floor. Over to you, ma'am. Yeah, thank you so much, Ankita. Hello, everyone. Today we'll talk about stock markets and yeah. So, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, the foundation, the basic foundation. When the basic foundation is very strong, definitely the bungalows are which you're going to make on it are also going to be very strong. But when the foundation is weak, definitely the bungalow is not going to be strong. So today we are going to work on the foundation. We are going to understand, whenever I meet any person who wants to invest in the stock markets but doesn't like he can't start, she can't start, they have so many questions. So this is a list of questions I usually find from them. Okay, I'll contribute somewhat in Hindi also, so as it would be comfortable to everyone. सो द बेसिकली मेरा एजेंडा ये है आज कि हम अपनी फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे बहुत सारे बंगलोज बन पाए, राइट? ओके, अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम बॉलीवुड से, मूवीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बचपन से। हमारी ये ट्रेंड रहा है कि what we do is we see in the movies, and whatever is happening in the movies we feel like that is real and we copy it or something like that. But whatever movies जो भी हमने देखी हैं उनमें आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा दिखाया गया है कि बेटिंग को लेके तो दिखाते हैं कि कुछ लोग बेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, बट स्टॉक मार्केट को लेके भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में, मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे ने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया और फिर पूरा मार्केट क्रैश हो गया और उसके सारे पैसे चले गए। तो हम भी वही मूवीज देख के बड़े होते हैं और हम कहते हैं, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, द एंटायर मनी इज गोइंग टू फ्लड here. So we feel like, okay, so stock market is something, a gamble, right? Even I meet so many people who are so educationally well qualified, but itna reach होने के बाद भी, who have done very well in their life, we definitely learn from them, but still they say no, stock market is a gamble. So why so? Why stock market has so bad reputation when you yourself take the name of, okay, Mr. Warren Buffett, Mr. Rakesh Jhunjhunwala, Mr. Jim Simons, and so many names. Like, what are these names famous for? Have they done a marathon or something? No, they have achieved great returns. Where? In the same stock market जिसको बॉलीवुड में विलन दिखाया जाता है, राइट? So and what we do, we invest in the favorite asset of our parents, which is fixed deposits, real estate and gold. That's great because हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एफडीज का रिटर्न वर 14%, 15%, बट अभी द रिटर्न हार्डली we get 5-6% return, right? So
how could we invest in FD? Okay, what about real estate and what about gold? So when we invest in gold, when we invest in real estate, first of all, real estate में invest करने के लिए you need a big amount, right? You need 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, whatever the amount may be. So when you are young, आप उस टाइम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, आप उस टाइम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इफ यू नो, कि हम थोड़ा 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 करते जाते हैं एंड द चेंज इज रिमार्केबल, राइट? सो हम जब अमाउंट सेव करते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, रियल एस्टेट के लिए यू हैव टू वेट कि आप कुछ बनाओगे, 20 लैक्स बनाओगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे. बट अगर आप मार्केट्स में यंग स्टार्ट करते हो, स्मॉल स्टार्ट करते हो, okay, so I won't say the regular things, definitely you might have heard all these things in all the other webinars, fine. So even the problem one I find is that even in schools and colleges, even if you're from commerce background, हमें ये नहीं सिखाया जाता schools में, colleges में कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज अपने देश में इन्वेस्ट करना. आपका देश, आपकी जीडीपी इसी इंडेक्स के ऊपर, इसी, बिकॉज एज द इंडेक्स ग्रोज, एज द जीडीपी ग्रोज, द ओवरऑल इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो, राइट? तो अगर आप निफ्टी में पैसे लगा रहे हो तो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन इंडिया, एंड इंडिया इज अ वेरी, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड फ्यूचर में भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज डेफिनेटली इंडिया का है ही, राइट? सो हम बहुत डरते भी हैं स्टॉक मार्केट से, बट हम बहुत बातें सुनते भी हैं. लाइक 40 ईयर्स पहले अगर हमने कोटक का एक शेयर खरीदा होता था 100 रुपए का, तो आज वो हमारे हो गए होते थे 5 करोड़. ओ माय गॉड, इज इट सो? सो क्या हम जब इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या हम इतना टाइम देते हैं? Like when we talk about Kotak, that Kotak में इन्वेस्ट किया होता था तो इतना हो गया होता था, but at the same time there are companies जिसमें आपने शायद तो 10,000 लगाए होते थे और वो 100 रुपए हो गए होते थे, राइट? ऐसा भी हुआ होगा. स्टॉक मार्केट, लाइक आई सेड, कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट्स हैं, राइट? ये फिक्स डिपॉजिट्स तो नहीं है कि आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एंड आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा. ओके, सो इवन इफ एफडी में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है जो कि 4 to 5% होता है, जहाँ की आपका जो पैसा डबल होने में लग जाते हैं लगभग 11 से 12 साल, अगर ये 5 to 6% रिटर्न दे रहा है तो. बट अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आई कुड टेक 18%, 20%, इवन इफ अगर आप कोई रिगरस ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी. सो aside from returns, first thing, when you see risk, so whenever you're buying a particular share, what you are doing, आप उस कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं, राइट? आप उस कंपनी के ओनर बन रहे हैं. सपोज आपके फ्रेंड कहते हैं कि मैं एक बिजनेस ओपन कर रहा हूँ एंड आप प्लीज उस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए इफ यू कैन. आप क्या करेंगे? आप बिजनेस का मॉडल देखेंगे, सब देखेंगे. अब वो आपको बिजनेस का को ओनर बना रहा है, राइट? तो आप सब कुछ लेफ्ट राइट, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल्स, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस कितना ग्रो करेगा, ये सब चीजें देखेंगे. एंड अगर आपको लगता है, इफ यू फील दैट या इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग, तो भी आप इन्वेस्ट करेंगे. क्या आप किसी के कहने से इन्वेस्ट करेंगे? लाइक वी डू नाउ,
किसी ने आपको न्यूज में बोल दिया, किसी ने टिप्स ऑफ योर वेल विशर्स, आपको कहीं से मैसेज आ गया, ओके यस बाय यस बैंक, दिस इज गोइंग टू गो अप और डाउन, यस बैंक। एक जीरोधा का सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि 92% ऑफ द अकाउंट्स हैड दिस यस बैंक, जब यस बैंक क्रैश हुआ था। कहाँ से आया सबके अकाउंट में येस बैंक? कहाँ से आया? बिकॉज डेफिनेटली व्हाट वुड हैपन इज किसी ने लाइक दिस इज द न्यूज, दिस व्हेन वी ट्रेड ऑन न्यूज बेस्ड इवेंट, अच्छा ये चीज ऊपर जाने वाली है, ये तो आपसे बाय करवाया जा रहा है, राइट? सो प्लीज डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज, बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस के को ओनर बन रहे हैं तो आप उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, सारे डिटेल्स देखेंगे, फिर ही इन्वेस्ट करेंगे, राइट? ऐसे ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। एंड अभी भी आप देखेंगे देर आर सो मेनी कंपनीज लाइक QC, HDFC Bank, MRF. There are so many companies to every 5 to 6 years, DMart, every 5 to 6 years they get double, triple. You can see their chart definitely. I'll show you. So these companies definitely get double, triple. So let's say, let me say DMart. Let's say DMart. Okay, so if I'm seeing its lifetime high, it has started just from 656 and it went to 5849. In how much time? In how much time? In around 1665 days, 1128 bars. So around 3 years, right? Around three and a half years, it went from around 600 to 6000. 600 से 6000 हो गया 3.5 साल में, 10 times हो गया, राइट? इट हैज गिवन यू 744% गेन। ये एक कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं where you will find such exponential returns. You will find 2 months, 3 months में ऐसे exponential returns in so many companies. Why I took the example of DMart? Because these are or you can say IRCTC, these are the companies जो बहुत ज़्यादा stabilized हैं, right? So when I'm saying stabilized, definitely, so let's say it started from 184 पे इसका लिस्टिंग हुआ था and it went to around 1281, right? And it gave 596% returns. So 184 से अगर ये 1281 तक जाता है, so around 500 बार, so just in the span of 1.5 years, right? 1.5 2 years में it gave you returns of around 600%, and you will find so many companies like these. But इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए what we need, what we need for this, we need stock picking, right? We need how to pick the perfect stocks. When you know how to pick the perfect stocks at that time, and definitely regarding risk, definitely ऐसा नहीं है कि जो भी stock आप खरीदेंगे it would go up or it would go down, but आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक में तो डालेंगे नहीं. What are you going to do? You're going to make a portfolio, right? So when you have a basket of stocks, definitely in from that particular basket, 6 will go up, 7 will go up. There will be 3 who will take time, right? Who will take time to get some momentum. That's fine. At least 4 and 5 will give you. So suppose उसमें से 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स आपको 20% का रिटर्न देते हैं, 4 स्टॉक्स आपको, 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स आपको 100% का रिटर्न देते हैं.
एक आधा स्टॉक रिटर्न नहीं भी देगा. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके स्टॉक्स आपको 20% 30% देंगे ही. एंड यू नो देर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड जिनका आपने नाम सुना होगा जो 30%, 40%, 50% ऑल्सो. जिम साइमंस इज मेकिंग 66% CAGR every year. So if they can make in their economy, so India is such a growing economy, so India mein to it's really possible, means 20% is nothing, right? And when I talk about 20%, 30%, so you can estimate this difference when I'm talking about 20% and 40%. The same, suppose if you're investing 20,000 per month, okay, and if you're growing at 20%, the amount would be around 6.5 crores, okay. बट यही अगर आपने 40% से ग्रो किया, 20% की जगह आपने 40% से ग्रो किया, सो अमाउंट 6.5 करोड़ की जगह, एनी गेसेस व्हाट इट वुड बी? You can calculate all these numbers in SIP calculator. You know, now as you're young, let's start with 1,000 rupees. You know, it's a rule, it's a 15 rule. So what does the 15 rule says? The 15 rule says that if you are investing 1,000 rupees per month, okay, if you're investing 1,000 rupees per month, लेकिन आप उसको 15% से increase करते हैं, 15% से increase करते हैं, यानी कि अब next year आप 1150 invest करेंगे, और एवरी ईयर आप उसको 15% से, एवरी ईयर, हाँ, नॉट एवरी मंथ, एवरी ईयर आप उसको 15% से इंक्रीज करेंगे. सो आफ्टर 25 ईयर्स अगर आपका यही सारा पैसा 15% के रिटर्न से ग्रो हुआ, देन आफ्टर 25 ईयर्स यू आर गोइंग टू हैव 1 crore. बट यू नीड टू हैव दैट पेशेंस. 15% बनाना स्टॉक मार्केट्स में very, very, very easy. Just you must know the good stock picking. Yes, one example which I was giving because I did this calculation very recently. So if you're growing at 14% and you are investing 20,000 per month, फाइन, 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली जब आपका कुछ प्रमोशंस हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट 20,000 per month. Okay, so at 14%, if you are growing, you can make at the end, you can make the corpus of around 2.5 crore, right? But यही अगर आप 20% से grow करते हैं, so your corpus would be around 6.75 CR. So tell me any guesses how much it would be at 40%? Yeah, any guesses from any of you? 13.5. How much? 13.5. 13.5. Okay, so you are just doubling. Okay, anyone else? No other guesses? So let me reveal. The figure is this much. The figure is 162. Now, can you see the exponential difference? Can you see the exponential difference? This difference is because of power of compounding, right? You know, it is said that the people who are very busy, so what do? They just keep on investing, and they invest and forget. They don't study much financials in something. They invest on the basis of उनको जो products सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उसके basis पे they keep on investing. So what happens when they keep on investing and they invest and forget, compounding effect goes very high and the transaction cost goes very low, and
that's where the magic starts happening, and that's how they become the great investors. Okay, and regarding a question which comes to me more often, that what is the process, how to start? It's very easy to start. You just need a PAN card, you just need a Aadhaar card, you just need a bank account. Even there are so many brokers who keep on calling. They keep on calling that open an account or something. One advice I would like to give here is कि ऐसा रहता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आर दोज ब्रोकर्स जहाँ पे आपका ब्रोकरेज बहुत कम लगता है. वहाँ पर सिर्फ आपको गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेस लगती हैं, समथिंग 0.1% से भी जो कम रहती हैं, जो ऐसे होती हैं कि आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा उन अमाउंट से. तो इतने कम ब्रोकरेज कम तब होता है जब आप डिलीवरी लेते हैं, यानी कि यू आर नॉट doing intraday trading or something, you are just buying the stocks and keeping it. तो अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास, डिस्काउंट ब्रोकर आर लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल, राइट, अगर आप इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास अपना ओपन करते हैं अकाउंट, तो आपको बहुत ही मतलब ब्रोकरेज तो लगती नहीं है, बहुत ही निल ट्रांजेक्शन कॉस्ट में आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट. एंड रिगार्डिंग द थिंग कि स्टॉक मार्केट का नाम क्यों खराब है, सो वन थिंग आईड लाइक टू कमेंट ऑन कि यहाँ पे माइंडसेट इशू है. बिकॉज व्हेन वी बाय अ प्रॉपर्टी, वी डोंट थिंक, हमारे घर वाले ये नहीं कहते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी को ना हम 2 महीने में बेच देंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो गोल्ड जब खरीदते हैं तो ये नहीं कहते अरे ये गोल्ड बहुत सही है, प्राइस बढ़ जाएगा, 1 साल में बेच देंगे. नो, लीगेसी, पूरी जनरेशन्स पास ऑन होता है वो गोल्ड और वो प्रॉपर्टी. उनको हम टाइम देते हैं, एंड देन हम कहते हैं कि हमारे पुश्तों ने 10,000 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी या ये पर्टिकुलर प्राइस में खरीदा था, एंड आज वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई. बट द सेम टाइम and the same patience we need to give to stock market also. If we can't give that patience, इफ वी कीप द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमें हमारे फ्रेंड्स इस तरह से बताते हैं कि ओ यू नो आई मेड डबल इन दिस स्टॉक इन 3 months, इन 2 months, इन लॉकडाउन आई मेड 5 times. सो हमें लगता है कि अगर इस तरह से ओवरनाइट कुछ होना है, सो वो फिर लॉटरी या गैम्बलिंग में हो सकता है. बिकॉज अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, आप किसी कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं, और उस ओनरशिप को आप गैम्बलिंग की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरों की टिप्स पे आप किसी की कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल नॉलेज, कुछ चार्ट्स देख के, कुछ बेसिस देखकर अगर आप नहीं कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. You know, I have seen, there was a survey which जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ किया गया था. सो उस सर्वे में ये निकल कर के आया. उस सर्वे में द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, कॉमन क्वेश्चन जो सबसे पूछा गया था वो ये था कि आप क्या एडवाइस करोगे किसी को भी जो अभी तक स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे. सो या आप खुद को क्या एडवाइस करोगे व्हेन यू स्टार्टेड. So they said कि we really wish we had a more understanding and more grasp on the psychology of stock market, because you know sentiments आपके stock market को चलाती हैं short term में definitely sentiments would work. लोगों के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं रिसेशन में, पीक्स पे अलग होते हैं, बॉटम पे अलग होते हैं, ग्रीड वर्क करता है, फियर वर्क करता है, बिकॉज ऑफ विच द प्राइजेस गोज अप एंड गोज डाउन. बट अगर आप अपना हॉराइजन लॉन्ग टर्म का रखते हैं, तो आपको कोविड के इस लॉकडाउन से कि अब मार्च में पूरा क्रैश हो गया है, अब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सभी खत्म हो जाएगा, शेयर्स भी खत्म होने हैं, बैंक एफडी भी खत्म होने हैं. सो अब अगर सभी खत्म होना है, मार्केट भी क्रैश करना है, सो हाउ वुड द, बट यू नो that was the time जब क्रैश हुआ, some people invested and the market doubled tripled in some time. Like उस टाइम जो क्रैश आया था, जिसने भी जो भी बाइंग करी होगी 6 months में, 12 months में, all the stocks almost gave more than 50%. बहुत स्टॉक्स ने 100% रिटर्न भी दिया, बिकॉज कुछ भी हो जाए
निफ्टी को तो ऊपर आना ही है, निफ्टी हैज टू कम अप. Anything may happen in the world, in the universe, but nifty will come up. So जो आपको FD लगभग आपको 11-12 साल में डबल रिटर्न दे रही है, डबल पैसे करके दे रही है एफडीज, वही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3 से 4 साल में आपका वही अमाउंट डबल हो जाता है. लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे. Okay, there was a survey, it was in US or something, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे. तो what does this survey says, what happened in this survey? There were 10-year-old kids, right? So there were a group of 10-year-old kids on one side, and one side there were a financial analysts, chartered accountants and all that, राइट. सो उस टाइम पर उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप कुछ स्टॉक्स पिक करिए. उन्होंने कुछ स्टॉक्स पिक करे एंड अराउंड आफ्टर अ स्पैन ऑफ आई थिंक 7 to 8 years उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेस किया गया और ये देखा गया कि जो 10-year-old किड्स थे उन्होंने जो स्टॉक्स पिक करे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया. क्यों? बच्चों ने कौन सी फाइनेंशियल एनालिसिस की? बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता था, right? So I raise this point because some people say I am from science background, I am from this background, I am from graphics background, मुझे commerce नहीं पता, मुझे balance sheet नहीं पता. So even if आपको balance sheet नहीं पता, you see kids could definitely pick better stocks than financial analysts and chartered accountants. Why so? Why did they do so? Because kids ने कैसी कंपनीज चूज करी थी? कैडबरी, डिज्नी, एनीथिंग व्हाटएवर जो उनको अट्रैक्ट करता था. ना कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं की. उन्होंने ऐसी कंपनीज चूज करी जिन्होंने उनको सेटिस्फाई किया था. जो कंपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे सकती है डेफिनेटली वो ग्रो करेगी. एंड व्हेन यू थिंक from customer point of view, when you see in the market which products are working, which products are very satisfactory, which products are not satisfactory, so you will definitely come to know which products will flourish. एंड उन कंपनीज के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नहीं है. सी दैट आर द डेफिनेटली द डिफरेंट फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसीडर while picking the stocks. तो अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी है, राइट, अगर आप खरीद के उस पर्टिकुलर स्टॉक को टाइम देते हैं, सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज फॉर यू, right? One question definitely comes a lot, that how does the stock market works? Why was it started? How does stocks came into picture? So regarding that, अगर हमें कुछ अमाउंट चाहिए, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ अमाउंट चाहिए, हम अपने रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं, हम बैंक को अप्रोच करते हैं. बट जब एक कंपनी को यही अमाउंट चाहिए होता है तो कंपनी पब्लिक को अप्रोच करती है. ओके, कंपनी पब्लिक को अप्रोच करती है क्योंकि उनको कोई कम अमाउंट नहीं चाहिए होता है. उनको 50,000 करोड़ चाहिए, उनको 70,000 करोड़ चाहिए. सो कंपनी एक स्टार्टअप बनाती है, एक मॉडल बनाती है, अपना एक बिजनेस आइडिया पब्लिक को पिच करती है एंड पब्लिक को कहती है कि आप मेरे इस अमाउंट, इस स्टार्टअप में, इस एंटरप्राइज में इतना अमाउंट डालिए. एंड देन वो जो भी पब्लिक को अच्छा लगता है, डेफिनेटली पब्लिक को अगर वो मॉडल अट्रैक्टिव लगता है तो पब्लिक डाल तो देती है अमाउंट. बट बाद में कुछ टाइम के बाद अगर लोगों को उन पैसों की वापस जरूरत है तो कंपनी कांट गिव यू बैक. सो इसलिए देयर इज अ मार्केट विच इज सेकेंडरी मार्केट. एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि यही अमाउंट जो हम लोगों ने जनरल पब्लिक ने कंपनी में डाला था, अब जब किसी एक को जरूरत है तो वो किसी और को सेल कर देता है, बिकॉज कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव इट बैक. कंपनी ने वो पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया. सो एक पर्सन किसी और को सेल करता है, सेकेंड पर्सन थर्ड को सेल करता है, एंड दिस इज द वे सेकेंडरी मार्केट वर्क्स. और अभी लगभग 4,96 समथिंग कंपनीज हैं जो BSE और NSE में लिस्टेड है. आप क्योंकि करोड़ों लोग
बाइंग सेलिंग करते हैं। आप जब भी जाएंगे कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, आपको कोई ना कोई बायर सेलर मिल जाएगा। एंड दिस इज द वे, दिस इज द मैजिक व्हेन आप किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप ले सकते हैं। आप डाबर के पार्टनर बन सकते हैं, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के पार्टनर बन सकते हैं, आप कोलगेट पामोलिव के पार्टनर बन सकते हैं, एंड आप प्राउड से बोल सकते हैं ओके डाबर इज माय कंपनी बिकॉज आई हैव अ ओनरशिप इन दैट, राइट? सो these things definitely matter a lot, and I would like to give you all a moment, like if there are any questions, On which basis you pick a stock? on which basis? Okay, so there is not a one basis. It's going to be a long class when I am going to talk about it. In Finance Cafe, I definitely tell about all these things. So you can definitely search me on that. I'll definitely see there are so many factors. I'll tell you three basic factors. Okay, one is business analysis. सबसे पहले आप देखो कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। सेकंड, आप देखो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तीसरा, आप देखो कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। ओके, सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एनालिसिस अभी करके दिखाती हूँ। सपोज वी से any company you can pick, right? Suppose I say Colgate Palmolive, it's a FMCG company, okay? अब आप देखो कोविड के टाइम पे सारी कंपनीज बहुत बुरी तरह से फॉल हुई थी, बट FMCG फॉल नहीं हुई थी। क्यों फॉल नहीं हुई थी? क्योंकि ये जो FMCG है, ठीक है, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन सब में क्या हुआ था, ये सब कंपनीज आपकी, अब देखो ये क्या बनाती है, टूथब्रश बनाती है, माउथ वॉश बनाती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कहीं वॉर हो जाए, कहीं कोविड हो जाए, कहीं भी इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, क्या आप ब्रश करना छोड़ दोगे? If you do it twice a day, so you are going to do it twice a day. If you are going to do once a day, that person is definitely going to do once a day, राइट? सो जो टूथब्रश बनाता है उसको क्या फर्क पड़ जाएगा, कहाँ वॉर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो ये चीजें हैं जो आप बिजनेस में देख सकते हैं। मैं और भी बहुत चीजें आपको बताऊंगी बिजनेस रिलेटेड। नाउ यू कैन सी अब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अगर आप कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लें, सारे के सारे शेयर्स खरीद लें अगर, तो आपको ये कंपनी कितने में मिलेगी? आपको ये कंपनी इतने में मिलेगी। लाइक इसकी फॉर्मूला इज एक प्राइस का शेयर 1464, एक प्राइस का शेयर 1464 इनटू जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये मार्केट कैप आ जाएगी। तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ओके, सो लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटानिया। नाउ यू सी, अब ये ब्रिटानिया का मार्केट कैप है 89,412 करोड़ का। ओके, वन थिंग आई लाइक टू से, नेवर जज अ कंपनी बाय इट्स करंट प्राइस, ठीक है? बिकॉज क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं 3,000 में महंगी है, वो 1,000 रुपए में सस्ती है। ऐसा नहीं है। वो तो अब अगर आपके पास 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 10,000 रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो कंपनी 10% से ग्रो करेगी तो आपका 10,000 10% से ग्रो करेगा। आपने उस कंपनी के 10,000 में 10 शेयर खरीदे हैं या आपने 10,000 में एक ही शेयर खरीदा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो, आपको मैं कहती हूँ कि 2,000 का एक नोट हमें देना है, ठीक है? तो 2,000 का एक नोट देना है या 100 रुपए के 20 नोट देने हैं? आप बोलोगे क्या बहुत महंगा पड़ गया, 100 रुपए के 20 नोट चले गए? नहीं ना, 2,000 का एक नोट दो या 100 के 20 नोट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से, कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से एक करंट प्राइस इज द प्राइस जिस पे भी मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इज द कंपनी की प्राइस, ठीक है? कंपनी की जो सेलिंग प्राइस, जो कंपनी का जो नेट वर्थ है कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से। सो हम मार्केट कैप को देखते हैं। आप ब्रिटानिया को देखिए, 89,000 का मार्केट कैप है,
ठीक है। अगर मैं आपको ऑफर करती हूँ बिस्किट, ठीक है, वो ब्रिटानिया का बिस्किट है या लेट्स से क्रेमिका का बिस्किट है, आप क्या क्या सोचेंगे कि आपको कौन सा बिस्किट लेना है? क्या आप इस बेसिस पे लेंगे कि नहीं नहीं ये ब्रिटानिया का है, बढ़िया होगा, बेटर फूड का क्रेमिका का बिस्किट ठीक ठाक होगा? नो, डेफिनेटली आपकी कोई प्रायोरिटी होगी कि मुझे क्रीम वाला चाहिए, आपकी कोई पर्टिकुलर टेस्ट होगी, उसके बेसिस पे आप लोगे। The one अदरवाइज which gives us maximum satisfaction. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट। अगर आपको आपको इट डिपेंड्स, आप अपनी प्रायोरिटी देखोगे, ये नहीं देखोगे कि ब्रिटानिया अच्छा है या क्रेमिका खराब है, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट सेम है, ब्रिटानिया का भी प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस सेम है और क्रेमिका का भी प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस सेम है। अब आप ब्रिटानिया का मार्केट कैप देखो 89,000, अभी अभी आपने देखा, एंड अब आप बेटर फूड का देखो मार्केट कैप देखो कितना कम है, 2232। दैट मीन्स आपको ये चीज कितना सस्ते में मिल रही है, कितना कम में मिल रही है, राइट। तो अगर मैं इसको बाय, दिस इज द वे टू सिलेक्ट market leaders. How will you select market leaders? How will you find market leaders? प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस सेम है बट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो इतना कम है, तो ये ग्रो करेगा ना, ये कहाँ जाएगा, राइट। इस तरह से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप मार्केट लीडर्स को किस तरह से ढूंढे। यू कैन सर्च दिस सी SIS, ओके। सो देखो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, सो डू यू नो कि दिस इज स्मॉल कैप, इफ यू माइट बी नोइंग स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप हम कैसे देखते हैं। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा 4,000 कंपनीज लिस्टेड है, राइट। तो जो पहली 100 कंपनीज है ना टॉप में मार्केट कैप में, वो पहली 100 कंपनीज आपकी ये है, लार्ज कैप है, राइट। आई विल शो यू स्क्रीन। So let us see all the companies which are more than 1 CR. तो दीज आर ऑल द कंपनीज, ये मार्केट कैप के बेसिस पे आ गया। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये 17 लाख करोड़ की कंपनी है। TCS लगभग 14.5 लाख करोड़ की कंपनी है। सो इस तरह से जो टॉप 100 कंपनीज होंगी ना, ये सब लार्ज कैप होंगी, लगभग 51,000 करोड़ तक की चलेंगी, राइट। उसके बाद जो 100 कंपनियां होंगी वो आपकी मिड कैप कंपनियां होंगी, और उसके बाद जितनी भी होंगी वो सब स्मॉल कैप होंगी। तो लगभग 19,000 करोड़ से जो कम वाली कंपनियां होती है ना, वो सारी स्मॉल कैप होती हैं। तो ये देखिए ये स्मॉल कैप है, राइट, ये स्मॉल कैप है। बट आप इसके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो यू विल सी कि ये मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर में। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग, right? You saw this is second in facility management, second in all over India in cash logistics, and first in India security. ये जो कंपनी है, बिकॉज ये सेक्टर की इतनी ग्रोथ नहीं हुई है अभी तक, ये सेक्टर ग्रो होना बाकी है, इसलिए इसका मार्केट कैप कम है, इसलिए ये स्मॉल कैप है। बट ये है 41% ऑफ द रेवेन्यू सिक्योरिटी सोल्यूशन, यू कैन रीड ऑल द डेटा हियर, राइट। सो बिकॉज ये अपने सेक्टर में लार्जेस्ट है, सो यू कैन डेफिनेटली सी कि इस तरह से आप मार्केट, इस तरह से और आपको बहुत मार्केट लीडर्स मिलेंगे। आप PE रेशो को भी कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर जस्ट फैक्टर्स विच यू कंसीडर, ऐसा नहीं है कि इसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। देर आर सो मेनी रेशोज। तो अब आप देखिए ये बुक वैल्यू इसकी कम है, करंट प्राइस ज्यादा है, मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे सारे शेयर्स। बट आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिनकी बुक वैल्यू 344 है, मतलब ये 344 की चीज है, मिल 228 में रही है, राइट। प्राइस जो करंट प्राइस है वो इतना कम चल रहा है, राइट। बुक वैल्यू 159 की है, करंट प्राइस उससे भी कम है। आपको ऐसी भी कंपनीज मिलेंगी जिनकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, जिनका ROC हम देखते हैं। अब आप देखिए ROC 4%, 1%, फाइन। इस तरह से आपको कंपनीज मिलेंगी जिनका ROC
जैसे कि अब आप देखिए 165%, 389%, राइट। बट आपको ऐसी भी कंपनीज मिलेंगी जिनका आरओसी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो है ही नहीं, क्योंकि इक्विटी है ही नहीं, बुक वैल्यू ही नेगेटिव है। मतलब अगर आप ये खरीदने जाओगे ना तो आपको 18 रुपए जेब से देने पड़ेंगे, कंपनी खरीदने जाओगे तो शेयर प्राइस तो है 12 रुपए का, राइट। इस तरह की कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट मैम, करते हैं, यस यस, what is the difference between book value and वो market value? see, this current price is the price at which share is trading in the market. मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको 12 रुपए में शेयर मिलेगा। बुक वैल्यू क्या है, कंपनी की जो ये बैलेंस शीट है ना, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ओके। यहाँ पर इस बैलेंस शीट के हिसाब से इन्होंने हिसाब किया कि कंपनी के पास 10 लाख के असेट्स हैं और 5 लाख की लाइबिलिटी है, तो कंपनी की वैल्यूएशन हुई 5 लाख की। अब अगर कंपनी की वैल्यूएशन हुई 5 लाख की, तो 5 लाख की वैल्यूएशन को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो एक शेयर की वैल्यूएशन हुई 50 रुपए की। तो हम कहते हैं कि एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए की है, लेकिन वो शेयर मिल रहा कितने में है, दिस इज द करंट प्राइस, मिल 12 रुपए में रहा है, लेकिन वैल्यूएशन है उसकी -18 इन दिस केस, बिकॉज ये है भी वैसा ही। अब आप देखो इसकी बैलेंस शीट देखो, शेयर कैपिटल है 28,000 का, ये जो रिजर्व्स हैं, अपने पैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, माइनस में है 2,07,000 करोड़ का, राइट, 2,07,000 करोड़ का इनके पास ऊपर बोरोइंग्स है। सो ये तो पहले 29,000 था। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं हम देखते हैं कि बोरोइंग्स कम से कम होनी चाहिए, ऐसे बढ़ती हुई बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। फिक्स्ड एसेट्स अच्छे होने चाहिए, ये जो आपकी कंपनी की जो सेल्स है ये हमेशा ग्रोइंग होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। प्रॉफिट कंपनी इस तरह से लॉस पोस्ट नहीं करनी चाहिए। आप दूसरों की सुन के शेयर्स ले लेते हो, खुद देखो ना कि लॉस तो नहीं पोस्टिंग है, लॉस तो नहीं पोस्ट कर रही है। दिस इज ऑल, ये मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस बता रही हूँ। इवन इफ आपने अच्छे फाइनेंशियल एनालिसिस कर भी लिए तो भी क्या वो कंपनी महंगे में मिल रही है या सस्ते में मिल रही है, ये चीज देखने के लिए व्हाट यू वांट इज टू चेक कि ये कंपनी आज किस जगह पे चल रही है, यहाँ पे एंटर करना चाहिए या नहीं, ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। उसके लिए यू नीड टू स्टडी टेक्निकल एनालिसिस। 3 aspects I told you, this is technical analysis, this is financial analysis, and the number 1 is business analysis. Business analysis में आप जनरल बातें कंपनी की कंसीडर करते हो, जनरल बातें आप कंपनी की देखते हो, एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस, इसमें तो पी रेशो है ही नहीं, फाइन। सो पी रेशो बेसिकली टेल्स यू हाउ मच कॉस्टली द कंपनी इज। Yeah, any other questions? Excuse me, ma'am. Yes. हम जैसे सपोज समवन सेड कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 10 बिलियन की है, तो मतलब वैल्यूएशन मतलब कैसे निकलती है वो, मतलब किस बेसिस पे निकलती है? ओके, तो आपने ये सब आईपीओ स्टार्टअप्स में बहुत सुना होगा। यस मैम, मैम जो टीवी पे भी आ रहा है आजकल शार्क इंडिया के नाम से। राइट, यूनिकॉर्न बना देते हैं, $1 बिलियन से ज्यादा हो गया तो। सो यू नो ये जो वैल्यूएशन है ना वो इस बेसिस पे है, मार्केट कैप के बेसिस पे। एंड अगर आप उस बेसिस पे बात करोगे तो प्लीज डोंट गो ऑन दैट। लाइक अब हम पेटीएम की बात करते हैं, आप पेटीएम की देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है इसकी 72,000 करोड़, देखो रिटर्न ही नहीं है, माइनस में रिटर्न है, देखो, राइट। अब आप एक कंपनी खरीदने के लिए, मैं आपको बोलती हूँ, आप ये कंपनी खरीदोगे तो आपको कितने में पड़ेगी, 72,000 में करोड़ में पड़ेगी। ये तो बुरी तरह से अभी गिर गया है, वरना इसकी मार्केट कैप तो पहले बहुत ज्यादा रही होगी, बट क्या अभी भी खरीदने जैसा है? अभी भी आप इसको खरीदने जाओगे तो ये आपको 72,000 करोड़ की पड़ेगी, ठीक है। और ये आपको कमा कर कितना देगी, देखो, लॉस मेकिंग है। सेल ही सिर्फ 1,000 करोड़ की है, बताओ, सिर्फ 1,000 करोड़ की सेल है और आपने इतनी बड़ी 72,000 की वैल्यूएशन बना के रखी है। ये जो वैल्यूएशन स्टार्टअप्स की जो आईपीओज में होती है ना, वो 10-10 साल का आगे का ये लोग एस्टिमेट कर देते हैं। आप एक बात बताओ, मैंने आपको 3 बेसिस बताए, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल। अगर आप किसी बिजनेस का
कोई भी बिजनेस आईपीओ में आता है तो आपका बिजनेस एनालिसिस तो आप उसका कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, बट चार्ट उसकी बनी नहीं होती है क्योंकि शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ होता है, अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है ना। तो बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? क्या आप एक कार खरीदोगे बिना टेस्ट ड्राइव किए? नो मैम। तो हम एक शेयर कैसे खरीद सकते हैं बिना उसकी टेक्निकल एनालिसिस किए? सो अगर आप आईपीओ की बात करोगे तो आई वुड नेवर गो फॉर इट। रिगार्डिंग बिजनेस एनालिसिस, हमें बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, राइट? कि कैसा बिजनेस है, बिजनेस के पास कुछ पॉइंट्स हैं क्या? अब आप देखो जैसे कि माइक्रोमैक्स स्टार्ट हुआ था, तो माइक्रोमैक्स जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ, बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहा था, बट गवर्नमेंट की साइड से कोई प्रोटेक्शन नहीं थी उनको, राइट? उसकी वजह से लावा आ गया, कार्बन आ गया, बहुत सारी चाइनीज कंपनीज आ गई, वो चल नहीं पाया। लेकिन अगर आप यहीं पे देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, आप देखो कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, 3 ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं अभी भी इंडिया में, 4 हैं, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है, या माइनिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे ना लाइसेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें। जैसे आपको कोलगेट बताया, हिंदुस्तान यूनिलीवर बताया, ये बहुत ज्यादा सेट से ग्रो नहीं करेंगी, धीरे धीरे ग्रो करेंगी, बट ब्रश तो हर किसी को रोज करना है, प्रोडक्ट्स तो हर कोई रोज यूज करता है, राइट? सो व्हेन यू सी दीज प्रोडक्ट्स, अब आप लेट्स से डाबर, ओके, तो जब हम कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, सो वी कम टू नो कि ये कंपनी क्या क्या बनाती है, इसका बिजनेस क्या है। अब आप देखो इतनी सारी चीजें होंगी, आपको पता भी नहीं होंगी कि ये देखो ब्लीच भी बनाती है, तेल भी बनाती है, जूसेस भी बनाती है, हनी भी बनाती है, और ये ग्लूकॉन डी भी बनाती है, ओडोमॉस भी बनाती है। अब देखो तेल तेल भी सर में भी लगाती है, हमें तेल खिला के बीमार भी करती है, और जब बीमार हो जाते तो हाजमोला भी खिलाती है, बताओ, पुदीना भी पिलाती है, अच्छे से बीमार हो जाते हैं तो कफ सिरप भी पिलाती है। आप देख रहे हो हर चीज, ये चेहरे की भी सफाई करती है, हर चीज बना रहे हैं ये लोग। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, हमें पता भी नहीं होता कि ये सारे ब्रांड्स इन्हीं के हैं, राइट? अब देखो इतनी बड़ी लिस्ट है, और भी बहुत पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ एक ही पार्ट खोला है। ये इम्यूनिटी से रिलेटेड, आंवला, गिलोय। सो हम इनके बेसिक्स में जब जाते हैं, जब हम देखते हैं कि कंपनी को कॉस्टिंग का कोई एडवांटेज है क्या। अब आप देखो जैसे कि डाबर है, अगर डाबर कोई नया एयर सैनिटाइजर लेकर आ रहा है, ठीक है, और आपने एक न्यू कंपनी बनाई, आप एक एयर सैनिटाइजर लेकर आ रहे हो, अब डाबर के सारे प्रोडक्ट्स कंपनीज के हर पान शॉप पे, हर किराना शॉप पे, हर मॉल में, हर जगह ऑलरेडी है। उसके लिए एक एयर सैनिटाइजर न्यू लॉन्च करना और अच्छे से चलाना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन अगर हम लेकर आ रहे हैं तो क्या हमारे लिए वो रीच पॉसिबल है क्या? अगर हम नया कोकोनट वाटर लेकर आ रहे हैं तो हम उतना रीच कर पाएंगे क्या? एक न्यू कंपनी उतना रीच कर पाएगी क्या? सो इस तरह की एडवांटेजेस कुछ कंपनीज के पास हैं, दे आर गोइंग टू बी मार्केट लीडर्स। सपोज देर आर सीमेंट कंपनीज, तो यू नो सीमेंट में लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी लाइमस्टोन का जो माइन है वो उनके पास ऑलरेडी है, सो उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑलरेडी कॉस्ट मार्केट कॉस्ट से कम हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। लाइक यू नो मैक्सिमम पीपल गो ऑन naukri.com, व्हाई दे गो ऑन naukri.com? बिकॉज फिर कंपनीज को भी ज्यादा वहीं पे आना पड़ता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवरीवन डज दैट। अब आप हाइक पे इतने लोग नहीं होंगे, राइट? वी चैट पे इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे सब होंगे। क्यों है हम व्हाट्सएप पे? क्यों है? क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं भी है, वो भी वही है, बात तो उन्हीं से करनी है ना, तो वो भी वही है। सो अब बताओ, व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल, व्हाट्सएप को ऊपर जाना ही है, इसलिए फेसबुक चल रहा है, इसलिए इंस्टा चल रहा है। These are the things we have to consider। एक गूगल प्लस करके भी कुछ आया था, बट वो नहीं चला था, इसलिए नहीं चला था।
और एक ब्रांड का भी एडवांटेज होता है. लाइक यू सी, मैगी का एक ब्रांड है, ओके. एक नया ब्रांड बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, बट मैगी का जब ब्रांड है तो मैगी के एक ही ब्रांड में वो लोग पास्ता, सॉसेस, सब कुछ लॉन्च करे जा रहे हैं. डेटॉल है, डेटॉल के आपको 100 प्रोडक्ट्स और मिल जाएंगे, सैनिटाइजर, सोप, और हम उस ब्रांड को देख के खरीद लेते हैं. सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं. बिजनेस एनालिसिस इज अ वेरी बिग टॉपिक टू टॉक ऑन. अगेन financial analysis is a very big topic to talk on, and this technical analysis is again उसी में बहुत बड़ा टॉपिक है. So there needs to be a long class if we want to talk all about that. So now I'll be happy to answer all your questions. If there are any questions, please let me know. What about investing in penny stocks? See, there is nothing called as penny as per me, because क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2000 के आप एक नोट दो, या 2000 के आप 100 के 100 के 20 नोट्स दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. अगर आपके बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं, अगर उसमें कंपनी में दम है, सो इट इज बाउंड टू गो अप. नाउ लेट्स से दिस. So I have sold this stock at around 2 days back, and I have bought this at 3 rupees, okay, and it is around 9, and I sold this around 11, okay. So see, I bought this in June something, in May or June something, yeah. Here I bought this, see, 3. सो ऐसा नहीं है कि ये पेनी स्टॉक है तो ये खराब है. अब ये मैंने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, एंड मैंने इसको 2-3 दिन पहले बेचा है अराउंड यहाँ पे. नो, आई हैव सोल्ड इट एट 10.75, तो मैंने यहाँ पे बेचा है. तो आई हैव मेड लाइक 300% प्रॉफिट इन दिस. तो आप बोलोगे कि ये पेनी स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है. आप इसकी मार्केट कैप देखो, 6785 करोड़ की कंपनी है. 6785 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ डिवाइड ज्यादा में किया है. 6785 करोड़ यूज होता है. आप देखो, इतनी छोटी छोटी भी कंपनीज होती हैं. देखो, धनलक्ष्मी बैंक सिर्फ 378 करोड़ की है. ऐसी आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी. ये आप लिस्ट देखो. लेट मी गो टू द लास्ट पेज. देखो, 1 करोड़ की मार्केट कैप वाली भी कंपनीज हैं. सो इट डजंट मीन्स, अब देखो ये 18 रुपए का है, ठीक है, इसकी मार्केट कैप देखो 1 करोड़ है. आप देख पा रहे हैं, 1 करोड़ की मार्केट कैप है. CMPA 18 रुपए, 18 रुपए का CMPA. बुक वैल्यू इतनी ज्यादा है, 31 है, फाइन, बट सिर्फ 1 करोड़ की कंपनी है. और विज़ यहाँ पर जो मैंने आपको पावर दिखाया, ये 6785 करोड़ की कंपनी है. प्राइस 9.9 है. तो आप क्या बोलोगे कि ये जयप्रकाश पावर इज स्मॉल एंड दिस इज बिगर? इज इट दैट कि इसका प्राइस डबल है? नहीं, हम तो मार्केट कैप देखेंगे ना, कंपनी कितनी छोटी या बड़ी है. बिकॉज यू कैन इमेजिन 1 करोड़ विज़ 6700 करोड़. Yes, any more questions? मैम Yes. मैम अपनी कंपनी को लिस्ट करने के लिए मतलब क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी तो करना होता है ना अपनी कंपनी को. We don't have to list. वो कंपनियां जो लिस्ट होती हैं, हम तो यहाँ ट्रेडिंग करने आए हैं, हम तो लिस्टेड कंपनीज की बाइंग सेलिंग करने आए हैं. हमें क्यों लिस्टिंग करवानी है? आपको लिस्टिंग करवानी है? नहीं मैम, मैं तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा. No. So that's a long process when you have to go for listing and all. वो तो we have to take the professionals help for that. Okay. Yeah. Excuse me, मैम, ma'am. बट वो Yes. एनालिसिस कैसे करते हैं? जो मेन एनालिसिस करना होता है किसी भी स्टॉक का, Yeah, that वो is हम what लोग I told you कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर हम कोई भी चीज बिना सीखे करते हैं तो इट्स अ गैम्बल, राइट. अगर मैं कहती हूँ कि आज मैं ऑपरेशन करूंगी, मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, तो मुझे पहले 5 साल पढ़ना पड़ेगा, राइट. यहाँ आपको 5 साल तो नहीं, बट कुछ थोड़ा टाइम तो पढ़ना पड़ेगा, राइट. तो एक बार आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं. सो ब्रॉडली आई टोल्ड यू, यू हैव टू डू टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. बाकी डिटेल्ड में तो वी कैन डेफिनेटली गो अबाउट इट.
मैम वो कैसे पढ़ सकते हैं, मैं वही पूछा था, पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं? You can enroll for courses. You can check my Finance Cafe website. You can check me on LinkedIn. So I have all the courses listed there. So there I'll definitely go detailed about की financial analysis कैसे करें, technical analysis कैसे करें, everything in detail. मैम वन क्वेश्चन था मैम, पूछ रहा हूँ कि मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड करके परचेज एंड सेलिंग परचेज करना चाहिए क्या? मार्केट कैप No. That is just one indicator. There are so many other indicators which you have to consider. टेक्निकल स्किल के अंदर मैम क्या क्या आता है, जो टेक्निकल एनालिसिस आप बोल रहे थे? Right. So there are different strategies. There are different formations. कि ऐसा formation हुआ. These are candlesticks, right? So if this forms like this, so I know that this is going to be a rocket, right? So there are different formations जो हम consider करते हैं. ओके Ma'am, how can we trade in future options trading? I don't do futures and options trading. I do only cash based equity trading. There is a reason to it. Futures and options is like वहां पे आप 10 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदते हैं. So Yes, ma'am. Exactly. मैम वहां पे लिवरेजिंग बहुत हाई रहता है. So it's just like a loan. की मार्केट कैप का मतलब अभी थोड़े बहुत So मैं टुका स्काई डाइविंग कर सकते हैं बिना पैराशूट के. तो एक ही बार कर सकते हैं, एक बार गिरे तो खत्म. अगर आपको मैच में, क्रिकेट के मैच में रहना है तो आपको नॉट आउट होना है. भले आप 1 रन बनाओ चलेगा, बट आउट हो गए तो आउट हो गए. एक बार आपके लॉसेस हो गए ना, तो फिर आप वापस रुकना, ट्रेड करना आप होल्ड नहीं कर पाते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. उसमें मैम वीकली टू वीकली चलता है ना, क्योंकि हाँ, बट देखो ना, अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो आपको या तो आप रुक नहीं पाओगे तो आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी. हाँ मैम, ये भी है, वॉल्यूम खत्म हो जाता है अगले दिन. खत्म हो जाता है, राइट. बट मैम मैम प्रॉफिट भी अच्छा होता है उसमें. मैंने लॉसेस भी करता अच्छे हूँ, होते हैं. मतलब हाँ, लॉसेस भी लॉसेस अच्छे होते हैं, वो भी है. अच्छे होते हैं, राइट. सो मेरी जो स्ट्रेटजीज है उसमें लॉस कभी नहीं होता है और प्रॉफिट्स अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. आप तो प्रॉपर उसमें करते हो ना, एनएससी में, मतलब शेयर्स वगैरह में प्रॉपर. Yes, exactly. I am talking only about cash-based equity trading. That's it. Ma'am, while looking into marketing strategy, there is a bid and ask price, ma'am. Bid price is low and ask price is high. Then bid price is high, then ask price is low. What will be suggestion you give, ma'am? Suppose I have to buy the stock or share price, ma'am. Suppose bid price is low, but ask price is also low. I can purchase or sell it, ma'am. करेक्ट. देखो, बिड प्राइस और आस्क प्राइस ये मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं. वो मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से इट गोज अप एंड इट गोज डाउन, राइट. और बिड प्राइस इज द प्राइस जो बायर कोट करता है एंड आस्क प्राइस इज द प्राइस जो सेलर कोट करता है. आप अपनी प्राइस कोट करोगे, आप मार्केट की प्राइस नहीं कंसीडर करोगे. Ma'am, what is the difference between bid low and bid price, ma'am? बिड प्राइस Bid इज द, वही मैं कह रही हूँ कि बिड प्राइस इज द प्राइस जो बायर कोट करता है, उसको बाय करना होता है. और जो आपका सेल प्राइस रहता है
आस्क प्राइस, वो सेलर बोलता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन बिड प्राइजेस जितने भी बायर्स होते हैं मार्केट में वो कहते हैं कि हमें इतना प्राइस चाहिए. Ma'am, I am asking for Okay, bid high I and guess bid ma'am low, has ma'am. answered a lot of questions today. So let's break for the day. We gonna call ma'am again, might be in the next week or next month according to ma'am's schedule. So thank you, ma'am, for sharing your valuable concepts and insights with us today. I'm sure everyone present here is taking home some valuable learnings. Thank you all for being such an amazing and active audience and asking so many questions to ma'am. Please fill the Google form if you haven't, because that's how you'll be getting a certificates. Yeah, so thank you so Excuse me, much. ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. Thank you, I guess ma'am. there was a quiz in between. Yeah. Yeah, ma'am, there was a quiz in between. What about the quiz? That you can ask to, I guess, Muskan. Ma'am, where is the Google Form link? It's in the chat box. There wasn't any quiz, Anish. There wasn't. Ma'am, can you share again, ma'am? Okay, I'll do that. Okay, fine. So thank you so much, everyone. Bye bye. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Have a Thank nice you, day. ma'am. Thank you. Yeah. Have a half day, ma'am.